Hello, Assalamu alaikum students. Walaikum salam, sir. The today's session is related to writing complex subqueries, and furthermore we have to study join operations. If you recall that within our previous lectures, we extensively study relational algebra and its operators. And within that, if you recall, you studied some basic operators and other derived operators. For example, you studied join operations, natural join, theta join, inner join, outer join, equijoin. You have studied those. We also studied set difference. We also studied cross product. So those concepts, we see how it should be implemented with the using SQL statements. And now this today's session, we more concentrate on join operations, are also how to write subqueries. So students sometimes feel difficulty in writing subqueries because it is a bit complex as compared to simple queries. So in this session, we will consider some examples and how we can write complex queries. Those subqueries basically when you use a querying statement, that is select statement, and within the select statement you nest this select statement with other select statements. So a bit we have studied in the previous lecture also. So select within a select, that is called nested select. Sometimes we have to query the data and we need subqueries. Further, we will also discuss today on how you can use multiple tables to retrieve the data. Sometimes data is not available from a single table. So more tables are included within the select statement to retrieve our required information that is basically residing in more than one tables. So we have to do that in this. I sent you material regarding complex queries and join operations, and also I posted my lecture that was recorded lecture. Did you watch that lecture or did you study that material? जी बेटे बताएं, आपको इत्फाक हुआ उस मटेरियल को स्टडी करने का या नहीं अभी आपने किया? हेलो, आर यू हियरिंग मी? आवाज आ रही बेटे? सर स्लाइड से ही पढ़ रहे हैं अभी। अच्छा चलो, अगर अगर आप उसको पहले थोड़ा सा स्टडी कर लिए करें तो आज का जो इंटर सेशन है वो आपको बेटे ज्यादा समझ आए. यस सर। So we have to go for what I recorded there. I will explain again. The first thing that the definition of the subqueries. So you can say the subquery is a query basically, and the subquery is part of another query. But we say that I am querying some data from the table. The most commonly used statement, that is a select statement you are using. So if you say the select statement is a querying statement, and within that select we have to write another select. So within the subqueries we say this is a subquery, but within the subquery that may be extended another subquery, because if you say the select statement and how many times it should be nested, so there is no such limit. I can extend it up to second, third, fourth steps in the select.
I wrote one select statement, and within that, with the where clause, I write another select statement. Then with the where clause, I wrote another select statement. So I wrote this select statement up to 3 levels. You can write up to 4 levels, 5 levels, etc. But when you're doing that, it is more complex. And why we have doing that, you have to understand the problem, understand what we likely to query from the table, and then you have to think about whether we have to use subqueries or not. The the most important thing that you must remember is when we are using select statement in on different levels, so the last one, the most inner statement, it is executed first, then it's outer, then it's outer. It is the order in which these statements are executed. The subqueries may be of two types. One is single row subquery and multi-row subquery. Just if you think about the queries, when you querying any data from the table, it depends upon the condition that you are using there, whether it will return you a single record or maybe it return you many records. So similarly, the subquery that you have written a select statement, as a result, it may return a single row or a single value. On the other hand, it may return many rows. So we can say the subqueries may be distinguished between the two such types. One is called single row subquery, the other is multiple row subquery. And we will today concentrate on some of the operators that a bit we already know about. The in operator, any, all, some, etc. These operators we will study in this lesson, how these can be used with the subqueries. If you recall that within the last lecture, we were discussing an operator that was exists, and I told at that moment that we use this operator in subqueries. So today we will also discuss that. So this is a difference between the sub of the subqueries may be correlated, some are not correlated. So if you run the subquery, that is the innermost select should be run, but the query, it should be run only one time. However, the inner query, it is giving some sort of results, and after running the inner query, the outer query must be executed. We said likely to say that for the inner query, the outer query is executed only once. That we say this is non-correlated. But with the correlated, that if we run our subquery, and that subquery, the outer query is basically you are executing not only once, but execute once for each row of the outer query. Yeah, make use of data from the outer query, whereas non-correlate not using the data from the outer query. So in the correlated subqueries, yeah, this basically execute one for each row of the outer subquery. Okay. So we can also use this. We will see in the examples how this is running. So within the subqueries, the select statement is nested. And the important thing that you have to remember that these subqueries, that basically the select statement, those are inner select statements. Those are used with the where class, with the from class, and with having class. So these are basically used within the subqueries, these classes. You are familiar with these classes. We also use these classes in simple queries. And the syntax of the subquery is you have written a select. This is called outer select. Select and column names. If you need to give the each column name, or you may give some sort of wildcard, I can write here select star. From table name, give the name of the table, and according to which condition you are likely to get this select, it should be operated.
And when we say this is where expression, we have given some sort of condition here, and within that I have written an other select statement. So this is called inner, and from where I started, this is called outer select, and this is called inner select. Or this is the first select, this is called outer query, and this is called inner query. So when this query is executed, in the very beginning, this inner query is executed, and it gives some sort of results. And those results that the inner query is giving, that may be a single row, single value, multiple rows, that we have already studied in the previous slides. So depending upon this one, whether this result matches the condition given with the where of the outer query, and if it is matches, then the outer query should run. First thing that you say, if inner query it returns null value, then the outer query also will return a null value. So in today's session, we have to discuss various operators like in, not in, any, all, exist, not exist, except, and some. We will give examples of that. And I request you that these examples should be practiced in your lab. In that manner, you can get more concept about that. So the important thing that you always remember that the nested queries, query execution start from the innermost query to outermost query. So in this manner, we can say this is the syntax. The innermost here is which is written after the where expression. The select this. So this is the inner. First it should be executed, then the outer query should be executed. So whenever you write some subquery, you have to write in a way that the subquery it will give some sort of results, and those should be then operated with the outer query. Let's suppose we have an example. We have a table student and the marks. With the student table, you have two columns, student ID and student name. And within marks, you have student ID and marks obtained. And it is apparent that within the two tables, the student ID is the common field. So if I know this student ID, that's B220, and from apparent ID say how many marks he has obtained. From the two table, you can physically say the 220 is Asad, and the 220 marks obtained 76. So you can say that the student ID, whose ID is 220, he has obtained 76 marks. But only you realize that this information collected from two tables, not from a single table. So in this subquery, we are using multiple tables. We are using two tables. Now the query is write a query displaying all students who got better mark than students with student ID, this one. The student ID is B67678. And your query is, would you write a query that will display all students whose marks are better than this student whose ID is B678. Clear? Although they are from the same class, you are only saying I likely to get the data of all the students who got better marks as compared to a one student, that's 678 student. This is his ID. So for that you have to write select s dot student ID. So this s I have written before this column. It means s is the here nickname of the student table. So when you have written from student s, it means s is the same as the student. I am using is alias. When you use this alias with the table name, then you can use alias with the column names. S dot student ID means this student ID is of the student table. Again, S dot STU name. It means your student name is also from the student table because this is S dot.
and after that I say m dot marks obtained, and the marks table has nickname m. So you are saying the marks obtained we are getting from the marks table, where student ID and m student ID. It means in both tables, student ID that is within the student table and within the marks table, that should be identical, and the marks obtained greater than, within the greater than, this is your where clause. Yeah, and where clause, the condition is given that student ID of the both tables should be same, and we say the marks obtained greater than. Here value is not given. We can give any constant here, but what we are saying, we have to write a select statement. Marks obtained from marks student ID is equal to 678. Yeah, this is inner query, that is at the bottom, and the select from where I started, that's the outer query. So I told you in the very beginning, the inner query is executed first. So we have to execute this select marks obtained from marks where student ID is equal to 678. So surely you will read this one and say that this query, that the inner query, would be executed first. And we say the student ID is a unique value. It is for every student is a unique. So when we say where student ID is equal to this one, it may return only single row from the marks table. Select marks obtained from marks where student ID is equal to 678. So what we get? We are getting only one column values, that is the marks obtained. Although there are two columns with the marks table, but we say from the marks table, I need only one value of the column. So that's the marks obtained. And we also say that the student ID is unique. Yeah. So it will get here only this 85. The value 85 should be collected with this inner query. Select marks obtained from, if I say select marks obtained from marks, just say I'm not giving any condition here, then you can say it will reflect all records 1, 2, 3, 4. So it may return multi rows, but we say I only need some numbers for the student whose ID is B678. So in that manner, it will only get one record and get the numbers obtained, and the marks number obtained we can see here is 85. Now 85 is here, and what should be the outer query now? How likely to say, how you perceive that? You can say select student ID, student name, marks obtained from student table and from marks table, where student ID is equal to student ID, that the student ID in the both tables should be identical, and marks obtained greater than, we have said that here we have calculated the value, that is the 85, that the inner query have returned. So this now the condition is there, select this from mark this, where this condition is satisfied. So in this manner it will give you all the students, those have identical this IDs and their marks is greater than 85. So this should be executed in this way. What you have done, you have used more than two tables, and you have also used the subquery. इस बात की बेटे समझ आई है, ये जो मैंने आपसे डिस्कस किया है? डिड यू गेट इट? हेलो? यस सर। यस हेलो, वो बेटे जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है, इस बात की समझ आ गई बेटे? जी सर। बस हाँ, जो आपने बेटे इसमें से जो लर्न किया वो ये किया कि विद इन ए वन सेलेक्ट स्टेटमेंट देयर इज एन अदर सेलेक्ट स्टेटमेंट। फर्दर आपने ये देखा कि जो इनर क्वेरी की सिलेक्ट स्टेटमेंट है, दैट वी हैव यूज्ड विद द वेयर क्लास। ठीक है बेटे? थर्ड आपने इसमें से लर्न किया, जो इनर क्वेरी होती है इट इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, और जो उसका रिजल्ट है व्हाट इट शुड रिटर्न, दैट मे बी then operated with the outer query. So whenever you have to write these subqueries in the very beginning, it looks a bit hard for the student
to think in this way, how we have to go for that. When you do practice, you would be more comfortable in running these sub queries. इसमें कोई अगर सवाल आपको नहीं समझ आई तो वो मुझसे पूछें। इस एग्जाम्पल की अगर नहीं समझ आई तो पूछें बेटे। आई जस्ट से एट द बॉटम ये जो इनर क्यूरी है ये फर्स्ट रन होगी, इसका कोई ना कोई रिजल्ट आपके पास आएगा, जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे ग्रेटर देन के बाद आ गया। ठीक है बेटे। अब फिर हमारी एक और वेयर कंडीशन बन गई। अब इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए आपकी आउटर क्यूरी जो है ना, अगर वो कंडीशन मीट करती है तो वो रन हो जाएगी और आपको रिजल्ट दे देगी। इज इट राइट बेटे? हेलो, आप ऐसा करें, इस क्यूरी इसके 2 टेबल बनाएं जो बने हुए हैं और फिर इस क्यूरीज को रन करके देखें अपनी लैब में, देन वी विल गेट मोर कॉन्सेप्ट अबाउट दैट। और फिर यू हैव टू सी कि ये वाली जो आपकी क्यूरी रन हो रही है ये क्या आपको आंसर देती है, क्या जो आपने इन द वेरी बिगिनिंग एक क्वेश्चन रेज किया था क्या ये उसको एड्रेस कर रही है या नहीं कर रही। क्लियर है बेटे? हेलो, यस सर। अच्छा, अब बेटे ऐसा है कि आई हैव गॉट वन एग्जांपल फ्रॉम योर बुक। ये बुक जो आपको लगवाई गई दैट वाज द डेटाबेस सिस्टम्स दैट वाज रिटन बाय द कनोली एंड बैग। सो उसमें से ये मैंने एग्जांपल ली है एंड इट हैज 1 2 3 4 5 tables are there, and if you like you to do practice and then you can create these tables, yeah, with your lab. And after that we are running some queries keeping in view these 1 2 3 4 5 tables. So we like to use our subquery using an operator in, that may also be used not in. अगर आप इसको रिकॉल करें, then in operator is used, and what should be at the right side of the in? We can say that with the right side of the in we have list of values. In the last lecture I also used this in statement, in operator, but within the select statement I also say there is an other alternative of in, that is say one value is equal to this or this or this. We are using OR operator. So here the concept is that within this in operator on the right side we have number of values, and we say whether this column name, where column name in, we have say the number of values, whether this value of this column exists that falls within the values, those are the list of values on the right side. So this is the basic concept. फिर सुन लें, उर्दू में सुन लें। जब इस क्वेरी को रन करेंगे जो वेयर क्लास आएगी, वेयर क्लास में लिखा हुआ वेयर कॉलम नेम इन और देन लिखा हुआ सिलेक्ट स्टेटमेंट। अब ये जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है इट कैन रिटर्न 1 वैल्यू, इट कैन रिटर्न 2 वैल्यूज, 3 वैल्यूज, 4 वैल्यूज। अब जो भी जितनी वैल्यूज ये रिटर्न करेगी वो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि जो मैं वेयर के साथ जो मैंने कॉलम दिया हुआ है जो उसकी वैल्यूज है, क्या वो इस लिस्ट में फॉल करती है या नहीं करती। अगर वो इस लिस्ट में फॉल करती जो इनके साथ लिखी हुई है देन इट इज ट्रू। अगर वो नहीं फॉल कर रही, ठीक है जी, देन इट्स फॉल। ये नीचे वाले जो सिंटेक्स देखें उसमें वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 लिखी हुई है सेपरेटली। जो ऊपर वाली है इसमें लिखा हुआ सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट एक वैल्यू भी रिटर्न कर सकती, 2 भी कर सकती, 3 भी कर सकती। हमने जस्ट जो आपके लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है कॉलम की वैल्यू उसको लिखना होता है कि इस लिस्ट में वो फॉल कर रही नहीं कर रही। तो ये है इसका इन का कॉन्सेप्ट। अगर आप लिखेंगे नॉट इन, इट मीन द वैल्यू दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इन दैट मस्ट नॉट बी नॉट इन द लिस्ट, वो इस लिस्ट में नहीं होनी चाहिए। सो एट not in and in, this is the basic concept of that. So this is the query। अगर आप वो टेबल क्रिएट करेंगे, display list of all cities where there is a branch office but no properties, this is the query basically we likely to run and get the results। अब इसको देखें, select distinct city। distinct city means the value of the city should not be repeated फ्रॉम ब्रांच। अगर आप यहां तक देखें तो ये आपकी जो आउटर क्यूरी है वेयर सिटी नॉट इन, यहां तक आपकी आउटर क्यूरी का कंसर्न बनता है।
और ये इनके बाद लिखा हुआ सेलेक्ट सिटी फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर रेंट। तो प्रॉपर्टी फॉर रेंट इज अ टेबल, उसमें से ये क्या करेगा, सेलेक्ट सिटीज, ये कंडीशनल नहीं है, ये ऑल सिटीज को सिलेक्ट कर लेगा। इससे प्रॉपर्टी फॉर रेंट में जितने सिटीज के नाम है ये उसको सिलेक्ट कर लेगा, वहां से रिटर्न करेगा। जब वो रिटर्न करेगा तो श्योरली इट विल अपीयर एज ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज। माइट भी उसमें 6 सिटी हो, 8 सिटी हो, 10 सिटीज हो, तो उस सूरत में बेटे ये क्या करेगा कि जितने सिटीज की वैल्यूज है उसको ले लेगा, तो वो हमारी लिस्ट आ जाएगी। अब देन आफ्टर रनिंग दिस इनर क्यूरी यू हैव टू रन द आउटर क्यूरी। अब आउटर क्यूरी में आप रन करेंगे डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम ब्रांच वेयर सिटी नॉट इन। अब ये जो ब्रांच, ये वाला टेबल है, इसका जो सिटी है, इसमें जो सिटी की वैल्यूज हैं वो वैल्यू को लेगा, लेकर देखेगा क्या ये वैल्यू जो है इस लिस्ट में शामिल है या नहीं है, तो फिर इसको वो रन करेगा। अगर शामिल है इट विल गिव द रिजल्ट। अगर वो कहता नॉट इन, इसका मतलब ये जो मैंने वैल्यू सिटी की इसमें से ली पहले रिकॉर्ड में से, वो इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो फिर ये उसको उसको आपको वैल्यू देगा। क्लियर होगी बेटे? अगर इन लिखा हुआ तो उसका ट्रू होना जरूरी है, अगर नॉट इन तो उसका फॉल्स होना जरूरी है। फिर the other thing that you have to remember, within this in, this is operator, you can't use other operators like this less equal, greater equal, not equal, equal, आप इनके साथ नहीं यूज कर सकते। we have to use with all or other any etc, उनके साथ हम इनको यूज करते हैं, सम के साथ भी यूज कर लेते हैं, लेकिन यहां नहीं लिखा जा सकता where city equal not in, it is wrong। और ये से where city greater than not in। और मैं लिखता हूं यहाँ पे select distinct city from branch where city here से greater equal in और greater equal not in। तो ये वाले जो है ना ऑपरेटर्स, those can't be added here। ये आपने याद रखना है विद इन ऑपरेटर, नॉट इन ऑपरेटर के साथ। इस बात की समझ आई बेटे? एनी क्वेश्चन अबाउट दैट? हेलो, नो आंसर फ्रॉम योर साइड बेटे? हेलो, एक तो आप क्वेश्चन बहुत यूज करते हैं। इस बात की बेटे समझ आ गई है ये नॉट ऑपरेटर की? यस सर। ये हमने सिंपल क्यूरी में भी यूज किया था। जो इन होता है, इनके जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू जो भी होती है, किसी भी कॉलम की जो वैल्यू होती है उसको हम जब इन लिखते हैं तो इसका मतलब राइट साइड पे हमें लिस्ट ऑफ वैल्यूज है, उसमें से वो देखता है कि वो वहां फॉल हो रही या नहीं हो रही। ठीक है बेटे? तो जब हमने इसमें सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज की है एज ए सब क्यूरी, तो जाहिर है उसने कोई वैल्यूज हमारी रिटर्न की हैं, तो वो जो रिटर्न वैल्यू है वो सिटी की है, वो एक लिस्ट ऑफ सिटीज आ जाएगा। अब वो देखेगा कि ये जो सिटी है उसमें है या नहीं है, बस। ठीक है बेटे? नो वी आर यूजिंग इन नॉट इन ऑपरेटर। ये एक और भी दी हुई है, आप देखें इसमें पहली सिलेक्ट आउटर है, फिर उसके बाद वेयर स्टाफ इन सिलेक्ट, फिर एक सिलेक्ट स्टेटमेंट दी है, फिर ब्रांच नंबर, फिर सिलेक्ट स्टेटमेंट दी है। सो दिस सिलेक्ट स्टेटमेंट इज नेस्टेड एट 3 लेवल्स। और मैंने आपको बताया कि ये 4 लेवल पे, 5th लेवल पे भी हो सकती है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर, जो हमने इसमें से क्वेरी करनी थी वो लिस्ट प्रॉपर्टीज दैट आर हैंडल्ड बाय द स्टाफ हु वर्क इन ए ब्रांच 163। तो ये जो आपका ब्रांच ऑफिस है उसका ये एड्रेस दिया हुआ है, वो देखेगा। सबसे पहले इनर क्वेरी देखें, सेलेक्ट ब्रांच नंबर फ्रॉम ब्रांच वेयर स्ट्रीट इज इक्वल टू दिस। तो जब बेटे इनर क्वेरी आप करेंगे तो जो इस स्ट्रीट का जिसका एड्रेस ये है उसमें से वो ब्रांच नंबर दे देगा कि उसका ब्रांच नंबर क्या है। ठीक है बेटे? इस स्ट्रीट पे जो भी ऑफिस है उनका, उसका जो ब्रांच दी हुई है, ये उसका जो ब्रांच नंबर यहाँ पे दे देगा। अब वो इससे हम आउटर क्वेरी चलाएंगे, ये वाली जो इससे सेकंड, स्टाफ नंबर फ्रॉम स्टाफ वेयर ब्रांच नंबर इक्वल ब्रांच नंबर। जो इधर से जो ब्रांच नंबर आपकी रिटर्न हुई है, अगर ये ब्रांच नंबर जो रिटर्न वैल्यू है और ये स्टाफ जो आपका टेबल है उसकी जो ब्रांच नंबर, अगर ये दोनों इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो यहाँ पे वो उस नंबर की वैल्यू आपको दे देगा। अब ये हो सकता है 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, जो भी है यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यू आ जाएगी उन स्टाफ की जो इस ब्रांच पे काम कर रहे हैं। तो अब ये आ गया, तो फिर हमने इससे आउटर जो है, अब हम ये कहा कि ये वाली जो चीजें वो लाइकली टू
reflect in our output from property for rent table where staff number in, ऐसे स्टाफ नंबर जो इस लिस्ट में फॉल करते हैं उनके लिए ये हमें जो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन हम मांग रहे हैं दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द रिजल्टेंट टेबल। ये बात बेटे समझ आई है? हेलो? यस सर। ये थोड़ा सा बेटे जब आप इनको लिखते हैं ये मुश्किल सिर्फ इसमें होती है कि जो पहले ये जो क्वेश्चन है इसको आपने समझना होता है कि ये क्वेश्चन है क्या बेसिकली, और उसके मुताबिक फिर आप ये इसको लिखते हैं। तो सम टाइम बच्चों से जो सब क्वेरी लिखना उनके लिए मुश्किल हो जाता है बिकॉज दे आर अनएबल टू इंटरप्रेट दिस व्हाट इज आस्क्ड और इसको हमने कैसे लेना है। अगर थोड़ा सा इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर जब हमने बेटे ये है कि एग्जिस्ट ऑपरेटर हम यूज करते हैं, ये हमने लास्ट जो स्लाइड थी आपकी जो प्रीवियस लेक्चर थी उसमें हमने इसको लीव किया था बिकॉज दिस इज यूज इन द सब क्वेरीज। बेसिकली एग्जिस्ट ऑपरेटर यूज टू टेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिकॉर्ड इन द सब क्वेरी। हम जिस एग्जिस्ट ले रहे हैं तो हम कहते हैं जो सब क्वेरी है क्या इसमें जो रिकॉर्ड्स हमारे पास रिटर्न होंगे उसमें क्या ये फॉल करता है या नहीं करता। टू टेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिकॉर्ड, जो आपकी आउटर क्वेरी से जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है उसका कोई भी रिकॉर्ड क्या इन रिकॉर्ड्स में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये हमने असल में देखना होता है। A valid exist subquery must contain an outer reference and it must be correlated query. So correlated query में क्या होता है, are used row by row processing. Each subquery is executed once for every row for the outer query. अब ये जो outer query इसमें है क्योंकि उसमें हमने जो कंडीशन है where exist के साथ लगाई हुई है तो इसकी जितने भी आपके रिकॉर्ड्स होंगे उसके लिए ये जो आपकी इंटरनल क्वेरी है ये एक दफा रन होके आपके पास आ जाएगा डेटा। फिर हम देखेंगे ये आउटर जो है इसमें वेयर एग्जिस्ट का जो हमने हमारा जो पहला इसमें रिकॉर्ड आएगा क्या उसमें एग्जिस्ट करता है नहीं करता, दूसरा करता है नहीं करता, थर्ड करता है, जो जो करता है एग्जिस्ट का वो उसका आपको जो भी कॉलम नेम दिए हुए आपने उसकी वैल्यूज आपको रिटर्न कर देगा। अगर आप नॉट एग्जिस्ट लिख रहे हैं देन यू से ये जो इसमें रिकॉर्ड आपका आ रहा है वो इसकी ये जो वैल्यूज हमने इनर क्वेरी से ली हैं जो भी रिकॉर्ड्स हमने लिए हैं उसमें इसको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। So you can also use this select distinct city from branch B where not exist select this one. Okay. So इसमें आप इनर क्वेरी को पहले रन करेंगे, ठीक है बेटे, और ये जो इनर क्वेरी है वो रन होगी उसमें ये देखेगा प्रॉपर्टी फॉर रेंट पी एंड बी डॉट सिटी पर पी डॉट सिटी, क्योंकि आपने ये जो प्रॉपर्टी फॉर रेंट है इसको पी निक नेम दे दिया है और जो आपका ब्रांच वाला है इसको आपने ये देखें बी निक नेम दे दिया है तो इसके लिए बी सिटी यूज किया है, इसके लिए पी सिटी यूज किया है व्हेन दे आर बोथ इक्वल। सो वी हैव टू गेट द रिकॉर्ड्स। फिर हम देखेंगे ये वाला सिटी जो है इसको हम देखेंगे वेदर दिस एग्जिस्ट और नॉट, जो भी इसमें जो आपका रिकॉर्ड आया इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सो यू हैव टू रन इट एंड देन गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वन हाउ वी हैव टू यूज एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट। एक चीज दैट यू मस्ट रिमेंबर दैट इज इन वर्सेस एग्जिस्ट। वी आर आल्सो यूज इन ऑपरेटर एंड नॉट इन ऑपरेटर। दूसरी एग्जांपल जो है वो एग्जिस्ट है नॉट एग्जिस्ट की है, तो इनमें एक बेसिक डिफरेंस है। व्हेन इवैल्यूएटिंग वेयर नॉट एग्जिस्ट इन द सब क्वेरी, जो अभी हमने पिछली एग्जांपल में देखा है, द डेटाबेस इंजन कुड क्विट सर्चिंग एज सून एज इट हैड फाउंड जस्ट वन रो। ये जो आपका है जब मैंने इसको एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट लिखा है तो ये सब क्वेरी रन होगी where it will find the first record where the city of the branch is equal to city of your property for rent। जब ये इक्वल आ जाएगा तो हमारे पास जो भी एक रिकॉर्ड आ जाएगा ये इसको ले लेगा। लेकिन इन की सूरत में जब आप इसको इन यूज करते हैं would always collect all the result from the sub query before further processing। इन की सूरत में वो जो मोर देन वन रिकॉर्ड उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं वो सारे के सारे लेगा, जबकि एग्जिस्ट की सूरत में जो ही उसको फर्स्ट रिकॉर्ड मिलता है वो वहां पे स्टॉप कर लेगा और फिर आउटर क्वेरी को रन कर देगा।
तो ये आपने इसमें ज़रूर याद रखना है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। ये इम्तहान में भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन एंड एग्जिस्ट व्हेन यू आर यूजिंग इन ए सब क्यूरी। तो ये आपने इसको रिमेंबर रखना है। Now use these other operators, any, all, some operators within the sub queries। और ये तीनों जो ऑपरेटर्स हैं इनकी अपनी अपनी रिटर्न है। When we use all is preceded by the keyword all। जैसे आपने वहां पे इन लफ्ज लिखा, हम इसमें अब all लिखेंगे। The condition will only be true if they satisfied by all the values produced by the subquery। जब आप सब क्यूरी लेते हैं, सब क्यूरी से कोई नंबर ऑफ आपके पास रिकॉर्ड्स आ जाते हैं या वैल्यूज आ जाते हैं, वो सारी की सारी वैल्यूज कंप्लायंस इन होनी चाहिए जो भी आल के साथ हमने कंडीशन दी हुई है। एनी में कोई एक भी अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो देन इट इज ट्रू। ओके, सो वी हैव टू सी द एग्जांपल्स एंड फर्दर मोर एनी ऑल ऑपरेटर्स आर यूज्ड विद द वेयर और हैविंग क्लास के साथ भी हम इनको यूज कर लेते हैं। जो मैंने एग्जांपल्स आपको दी हैं वो वेयर क्लास के साथ इधर दी हुई है। Let this is a syntax. Select column name from table name where column name any। और ये all दोनों की syntax लिखी हुई है। और एक चीज है कि within this any or all you can use other operators equal, not equal, less than, जो कि आप इनकी सूरत में यूज नहीं कर सकते। I have already told you। So you can say where this column name greater than any of the value, equal any of the value, or greater than all of the values, those are executed when the inner query is executed, we will get the results। So ये आपने रिमेंबर करना है कि within any all आप ये ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, जबकि इनके साथ आप यूज नहीं कर सकते। Let we see the example। The example is find all staff whose salary is larger than the salary of every member of the staff at branch। अब ये देखो एक ही ब्रांच में लोग काम करते हैं, वो ये कह रहा है कि इसमें से ऑल स्टाफ को मुझे बताएं जिनकी सैलरी लार्जर है देन द सैलरी ऑफ एवरी मेंबर। मिसाल के तौर पे 10 मेंबर काम करते हैं, वो कहता है मुझे ऐसे बंदे इसमें से बताएं, ऐसे स्टाफ बताएं जिनकी सैलरी जो 10 वाले हैं उनसे ज्यादा है। सो यू हैव written a sub query and we see how it will be executed। अब देखिए इधर all के साथ हमने greater का लफ्ज लिखा हुआ है। ये you can use these operator with any, with all, etc। तो ये inner query should be run select salary from staff where branch number is equal to this one। तो ऐसे ये staff जो आपका टेबल है उसमें से ये सैलरी की सारी वैल्यू ले लेगा जिसमें ब्रांच नंबर इसके बराबर है। उस ब्रांच नंबर में माइट बी मोर देन वन स्टाफ मेंबर, तो ये उनकी वैल्यू यहाँ से ले लेगा। सिलेक्ट सैलरी और लेगा सिर्फ एक कॉलम की सैलरी की, और ये रिस्ट्रिक्टेड है कि उस ब्रांच का नंबर ये है। अब जब ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, वो अब ये कह रहा है कि ये जो आपका स्टाफ है इसमें से आप ये जो कॉलम्स आप रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं उसकी कंडीशन ये है कि पहला जो रिकॉर्ड है अगर उसकी सैलरी, ये जितनी सैलरीज की वैल्यूज ये निकली उससे ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो उसका स्टाफ का नाम और ये सब दे देगा, अगर कम है तो नहीं देगा। जितनी भी वैल्यूज हैं वो ऑल से देखेगा कि क्या सैलरी इज ग्रेटर देन ऑल द वैल्यू दोस हैव बीन रिफ्लेक्टेड इन द सब क्यूरी। क्लियर होगी बेटे बात? ये बात बेटे समझ आ रही है? हेलो यस सर। सर ये सैलरी के साथ स्टाफ का नंबर, नेम और पोजीशन वगैरह सब बताएगा? हाँ जी, देखो बेटे बात ऐसे है कि जो आपकी आउटर क्यूरी है उसमें वो आप चाहते हैं कि स्टाफ नंबर दे, फर्स्ट नेम दे, लास्ट नेम दे, पोजीशन दे और सैलरी, ये सारी चीज़ आप चाहते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको किस में अवेलेबल है? स्टाफ वाले आपके टेबल में। और हम कहते हैं कि उसी स्टाफ वाले टेबल को पहले ये रन करे इस तरह कि उसकी जो ब्रांच है ये वाली, उसमें से मुझे बताए इस ब्रांच में जो सैलरी की वैल्यूज हैं वो क्या है। फॉर एग्जांपल जिसमें 10 रिकॉर्ड है तो यहाँ सिर्फ वो लिखा हुआ है सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम स्टाफ वेयर ब्रांच नंबर इज इक्वल टू B03। हो सकता है उसमें से 4 रिकॉर्ड्स ऐसे हो जो ब्रांच नंबर B003 के हो या 3 हो। इसका मतलब अगर 3 है तो 3 वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी, 4 है तो 4 वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है बेटे, अब वो सैलरी की वैल्यू आएंगी। ठीक है बेटे, वो जो सैलरी की वैल्यू आपके पास आई है, अब वो ये कहता है कि ये जो आपका आउटर है स्टाफ में देखें कौन सा स्टाफ मेंबर ऐसे है जिनकी वैल्यू इन वैल्यू से ज्यादा है।
वेयर सैलरी ग्रेटर देन ऑल, ये जितनी भी यहाँ से वैल्यूज आपकी आई हैं रिटर्न में, उन सब में से ये पहले रिकॉर्ड की जो सैलरी उसकी वैल्यू अगर ज्यादा है तो वो ये इसको प्रिंट कर देगा, अगर नहीं तो फिर नहीं करेगा, क्योंकि आप यही कह रहे हैं कि फाइंड स्टाफ हु सैलरी इज लार्जर देन द सैलरीज ऑफ एवरी मेंबर। तो ये जो बाकी मेंबर है उसकी सैलरी आपने यहाँ से ले ली है, अब वो कहते हैं इसमें से वो बंदा ढूंढ के दे जिनकी सैलरी जो है इन सारे मेंबर से ज्यादा है। डिड यू गेट इट? अब समझ आ गई बेटे इसकी? यस सर। ओके ओके। सो अगर मैं यहाँ पे एनी लिख दूं, ग्रेटर देन एनी, सो द कंपैरिजन इज विद नॉट ऑल द वैल्यूज, कंपैरिजन है कि कोई किसी एक से भी इसकी वैल्यू अगर ज्यादा है तो वो हमारा ये जो है ना ये फर्स्ट क्वेरी का रिजल्ट दे देगा। इफ आई राइट एनी, सो देयर इज सम ऑपरेटर भी हम यूज करते हैं, इधर सम लिखा हुआ है, एनी की बजाय या ऑल की बजाय सम लिखा हुआ है। तो सम ऑपरेटर एवेल्युएट्स द कंडीशन बिटवीन आउटर, ये सम जो है ये भी वही कंडीशन है, लेकिन इसका जो रिटर्न होगा, सम मस्ट मैच एट लीस्ट वन रो इन द सब क्वेरी एंड मस्ट बी प्रोसीडेड बाय द कंपैरिजन ऑपरेटर। इसमें ये हम कहते हैं कि ये टेबल एवेल्युएट होगा एंड इफ द फाइनल रिजल्ट रन ओनली वन रो, इफ नॉट देन इट एवेल्युएट्स टू बी फॉल्स। ये एक रिकॉर्ड इसमें से देगा, अगर वो इससे बड़ा हो गया तो वो उसकी वैल्यूज आपको दे देगा। ठीक है बेटे? तो ये भी सवाल इस तरह का आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज ऑपरेटर्स व्हेन वी यूज ऑल, इन, एनी। ठीक है बेटे? तो यू हैव टू रन दीज क्वेरीज, अपनी वर्कशॉप में इसको रन करके देखें और देन यू विल गेट मोर कॉन्सेप्ट ऑफ दैट बाय डूइंग दैट। समथिंग बेटे लर्निंग होती है बाय डूइंग, समथिंग आप लर्न करते हैं बाय ऑब्जर्वर भी आप रन करते हैं, बट समथिंग यू आर लर्निंग बाय डूइंग, जो बाय डूइंग है वो आपको भूलती नहीं है। नाउ वी हैव टू यूज बेटे एक्सेप्ट ऑपरेटर। ठीक है बेटे? इट इज, अगर आप रिकॉल करें, यू हैव स्टडीड वन ऑफ द ऑपरेशन विद इन द रिलेशन जबरा दैट वाज सेट डिफरेंस। ये वही वाला है, ये हम एक्सेप्ट से इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो SQL accept class operate use combine two select statements and return rows from the first select statement that are not returned by the second। हम कहते हैं कि जो एक टेबल में है वो दूसरे टेबल में नहीं है, वो हमें रिटर्न कर दे। ठीक है बेटे? फॉर वैलिड क्वेरी द लेफ्ट राइट क्वेरीज कंटेन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स एंड, अब ये हमने जरूरी है कि जिन टेबल्स को हम डिफरेंस कर रहे हैं, जिनका देख रहे हैं, उनमें नंबर ऑफ कॉलम जो है ना वो सेम होने चाहिए। Further, accept returns those tuples that are returned by the select operation and not returned by the second select। जो हम देखते हैं, अब उसका कहने का मकसद है ये the SQL statement is operated combine करता है and क्या रिटर्न करता है, the first select statement returns are not returned by the second। ये वही रिफ्लेक्ट करेगा जो दूसरी select statement रिटर्न नहीं कर रही। ठीक है बेटे? तो it is the same as using subtract operator in the relation algebra, जो सेट डिफरेंस वाला है। अब ये देखें, इसमें ये एग्जांपल दी हुई है, इट इज वेरी सिंपल एग्जांपल। एक स्टूडेंट 1 है, इसमें ये 3 रिकॉर्ड्स हैं, एंड स्टूडेंट 2 है, इसमें भी ये 3 रिकॉर्ड्स हैं। नाउ इट्स कॉलम्स हैव द सेम नेम, ये जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। अब आई हैव रिटन दिस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1, मैं कहता हूँ जो स्टूडेंट 1 है इसके जो सारे कॉलम्स हैं उनकी वैल्यूज मुझे दे दे। एक्सेप्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 2। अब करेगा क्या ये कि ये जो सिलेक्ट इनर है पहले इसको रन करेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 2। जब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 2 करता है तो इसका मतलब ये सारी वैल्यूज ले लेगा, तीनों को तीनों रिकॉर्ड ले लेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है कि जो इसमें से नहीं है हमारे पास, जो ये वाली जो जिसमें कॉमन होगा उसको छोड़ देगा ये, क्योंकि ये इसमें फॉल करती है, पहली इसमें नहीं फॉल करती उसको ये ले लेगा, दूसरी फॉल इसमें कर गई है इसको वो नहीं लेगा, और तीसरी फिर नहीं करती, ये एक्सेप्ट है इसको। तो योर आंसर शुड बी दिस वन। बात इसकी समझ आ गई है? दोबारा समझाऊं बेटे? लेट इट रिपीट। एक्सेप्ट क्लास ये ऑपरेट करती है 2 सिलेक्ट स्टेटमेंट्स में, करती क्या है, 2 स्टेटमेंट। फर्स्ट सिलेक्ट स्टेटमेंट मतलब जो आउटर वाली है, आर नॉट रिटर्न बाय द सेकंड।
सिलेक्ट स्टेटमेंट। जो दूसरी वाली रिटर्न नहीं करती उनको ये ले लेगा। ठीक है बेटे। सो अगर आप इसी को यूज करें, अगर बेटे आप इसी को यूज करें एंड चेंज दिस, दूसरे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टू एक्सेप्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो ये नहीं होगा। ठीक है बेटे। तो यू कैन यूज दिस फ्रॉम विद वेयर कंडीशन भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जस्ट यू हैव टू रन दिस वन। हमने ये कहा कि जो ये रिटर्न करेगा, जो ये नहीं रिटर्न कर रहा, जिसमें ये कॉमन होती है उसको तो वो छोड़ देता है, लेकिन जो नहीं फॉल करती, a माइनस बी, जैसे आपने पढ़ा था डिफरेंस a माइनस बी और b माइनस ए नॉट इक्वल। सो जब आप ये स्टूडेंट 2 पहले ले लेंगे, स्टूडेंट 1 बाद में लेंगे इनर क्यूरी में, और पहले में हमने स्टूडेंट 1 आउटर क्यूरी में लिया और स्टूडेंट 2 इनर क्यूरी में लिया। तो आप इसके रिजल्ट देखें इसको ट्राई करके। This is another example of the accept display list of all cities where there is a branch office but no properties. Here is select city from branch except select city from property rent. तो सब इससे लेगा वो, इससे वैल्यूज आ जाएंगी, और जो वैल्यूज इसमें नहीं है जो, तो वो आपको उधर प्रिंट कर देगा। Accept automatically removes all duplicate in the final result, whereas not in retain the duplicates. ये एक क्यूरी है किस्म की, आपको रिमेंबर करनी है। जब हम नॉट इन यूज करते हैं तो वो डुप्लीकेट रखता है, या इन यूज करते हैं डुप्लीकेट रखता है, जबकि एक्सेप्ट जो है वो डुप्लीकेट को रिमूव कर देता है। Now we have to use that how can we get data from multiple tables. तो सिंपल क्यूरीज में क्या होता है कि आप 2 टेबल से डेटा लेना है, और दोनों टेबल में जो कॉलम्स हैं दैट शुड बी रिटन विद द सेलेक्ट, उसमें एलिस यूज कर लें आप, और फ्रॉम में दोनों टेबल्स का नाम दे दें। एंड फर्दर वी कैन यूज आल्सो द जॉइन। So to perform join, include more than one tables and use comma separated between name और tables included. जब आपने from लिखना है तो वो जो जितने भी आप टेबल likely to use उसको कॉमों से आपने ये सेपरेट कर देना है। That we have to get the example. ये बेटे एक एग्जाम्पल है, वही जो स्टूडेंट है और ये फी स्लिप है। ये स्टूडेंट अपनी फी पे करते हैं। So within the student I have student ID, name and fee slip number. And here I have the fee slip table, fee slip number, date and amount. कितनी किस तारीख को पैसे जमा कराए और कितनी उनकी स्लिप नंबर। Within the two, the slip number should be same, ताकि वो कंपेयर हो सके कि स्टूडेंट ने कितनी अमाउंट जमा कराई। And we likely to have data from the two this tables, ताकि मुझे पता चले स्टूडेंट आईडी नेम और उसने कितनी फी जमा कराई, किस डेट को कराई। So I need the both table to get my result. Here I only say the select S student ID. It means S is a nickname of the student, alias है। तो मैंने हर अपने कॉलम के साथ वो लिख दिया S student ID, S name। ये दोनों कॉलम जो हैं ये कहाँ से लेगा, स्टूडेंट टेबल से। फर्दर इट इज रिटन फी डॉट फी स्लिप एंड फी डॉट अमाउंट, और ये F डॉट है, इसका मतलब जो फी स्लिप को मैंने F निकनेम दिया हुआ एलियस, तो ये उसके दोनों कॉलम्स हैं। 2 कॉलम्स आपके स्टूडेंट टेबल के हम रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, और 2 आपके फी स्लिप के, दैट इन द रिजल्टेंट टेबल फ्रॉम स्टूडेंट एंड फी। अब देखो ये दोनों टेबल हमने यूज किया और इसको कॉमो से हमने सेपरेट कर दिया हुआ है। whenever you are using more than 2 tables and with the from clause you have to separate with the commas। और जब एक एक है उसके कौन कौन से कॉलम आपने लेने हैं तो इनको आप एडिस दे दें, और वो एडिस इस कॉलम्स के साथ लिख लें। where student fee slip number is equal to F फी स्लिप नंबर। हम ये कहते हैं कि जो स्टूडेंट में जो स्लिप नंबर है एस वाले में, वो जो एफ वाले के स्टूडेंट के स्लिप नंबर से कंपेयर करके अगर इक्वल है तो मुझे ये जवाब देते। तो दैट शुड ओके। इन दैट मैनर यू आर यूजिंग मल्टीपल टेबल्स इन योर क्वेरी। इसकी समझ आ गई बेटे? हेलो? यस सर। चलो गुड है। So this is say that that's the same thing that I have। जो पहला है इसमें वेयर क्लास नहीं यूज हुई इस एग्जांपल में, दूसरी में वेयर क्लास भी यूज हुई है, ऑर्डर बाय क्लास भी यूज हुई है। एंड इसमें जो ऑर्डर बाय क्लास नेम है, जितने लोगों के आपके आएंगे वो ऑर्डर बाय नेम हो जाएगा, और इसमें तमाम के तमाम रिकॉर्ड जिसमें कोई वेयर कंडीशन नहीं लगी हुई
So you have to run these query and see the results. Now, bete, we have also studied the cross product in the relation algebra. So let's say you have two tables, this fee slip table and the student table that we have already taken that. आप कहते हैं कि इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट हो, एंड विद द क्रॉस प्रोडक्ट जो आपने पढ़ा था रिलेशन अलजेब्रा में, यू से टेक द फर्स्ट इंस्टांस ऑफ द फर्स्ट टेबल एंड रिलेट इट टू एवरी इंस्टांस ऑफ द सेकंड टेबल. तो हमारी जो रोज बननी चाहिए थी वो पहली रो, इसके साथ ये सारी S10 S20 ये रोज बननी, फिर सेकंड रो ली लेफ्ट वाली, फिर 10 के साथ उसको रिलेट किया. इन दैट मैनर यू हैव क्रिएटेड ए क्रॉस प्रोडक्ट. यू हैव ऑलरेडी लर्न विद द रिलेशन अलजेब्रा. In order to implement that with the help of the select statement, you just say select star. It means we are looking for all the columns. From fee slip, we have to write cross join and student. There are two tables are involved in it. One is fee slip and other is student. And we say the output should be the cross join. So in this manner, it will display all those values जिसको वो relate करके बता देगा. जिनकी दोनों की cross product that should be appear as the resultant table. Any question about that, about the cross product? No, sir. Okay, then good. Now we have to see, we have already studied natural join. आपके याद करें, और inner join, outer join, the inner join, we are natural join, equi join, and how we have to carry out that at that moment. आप याद करेंगे तो आपको पता चलेगा. In the very beginning we have a cross product, and after that we have a selection operator. After that we need to say want to keep the copy of the duplicate column once. उसकी एक कॉपी हमें चाहिए, फिर हम उसमें प्रोजेक्शन यूज कर देते थे. So that we have done in the relation algebra. In order to execute this natural join with the two tables, you have to say select column list from table 1, natural join table 2. You have to write word here natural join. In the previous example, you were the cross product. You say the cross join, and here we have to say the natural join. To see its example, we have taken the both table that we have already created as fee slip and this. We say select star from student. Yeah, is all column should be displayed. Natural join fee slip, वो इसके साथ इसका नेचुरल ज्वाइन करेगा और फिर आपको दे देगा. उसमें हमने किया क्या था, विद द नेचुरल ज्वाइन द इक्वलिटी साइन इज इम्प्लिसिट. वो बेसिकली देखता है जो उसमें कॉमन कॉलम है उसको देखता है कि किस किस के साथ वो क्रिएट हो गया हुआ है. तो जब हम इन दोनों को करते हैं तो हम इसका पहले क्या करेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ली. क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद फिर हमने इसमें से सिलेक्शन की कि इसका जो स्लिप नंबर है इसकी किसके स्लिप नंबर के बराबर है. और फिर हमने इसमें लिया कि इसमें जो स्लिप नंबर, एस डेट, अमाउंट और इसमें इतने हैं, तो जो आपकी स्लिप नंबर है ये दोनों जगह पे आ रहा है, दो कॉलम है, और ये डुप्लीकेट है तो इसकी एक डुप्लीकेट वो हटा देगा. तो देन दिस शुड बी द रिजल्ट. इसमें स्लिप नंबर 234 और 512 वो क्रिएट हो रहे हैं तो उनकी दो की वैल्यू दे देगा. बताएं, डिड यू गेट दिस वन? हेलो हेलो यस सर. हिना बेटे, ये बात समझ आ गई है? यस क्योंकि सर. अगर आप रिकॉल करेंगे ना तो आपको याद आ जाएगा कि यही हमने अपने रिलेशन अलजेब्रा में किया था. सो विद इन दैट वी हैव इम्प्लीमेंटेड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस वन. अभी आपने ये, जी बेटे जी सर, आगे समझ. इसमें ना हम मतलब क्रॉस प्रोडक्ट भी खुद ही करेगा ये, उसके बाद सिलेक्शन भी खुद ही करेगा इक्वल साइन के साथ. फिर इसकी वो जो प्रोजेक्शन है, जो डुप्लीकेट कॉलम था उसको एक दफा लिखेगा. ऑल इज डन विद द हेल्प ऑफ द नेचुरल जॉइन. आपने सिर्फ उसको कह दिया है कि यू हैव टू एग्जीक्यूट दीज टू टेबल्स एंड आई नीड टू गेट द रिजल्ट ऑफ द नेचुरल जॉइन. ओके सर. अब आपका इनर जॉइन है जिसमें बेटे ये इक्वी जॉइन भी होता है. इक्वी जॉइन में ये देखो हमने स्लिप नंबर इज इक्वल टू एफ स्लिप नंबर, हमने एक्सप्लिसिटली बता दिया कि ये स्लिप नंबर और दूसरी स्लिप नंबर दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, जबकि हम उसमें नहीं बताते थे. नेचुरल जॉइन में ये इम्प्लिसिट है. ठीक है बेटे, तो ये इट विल गिव द सेम रिजल्ट बट दिस इज इनर जॉइन जो इक्वी जॉइन है.
and your other we have to say the outer join. आप अगर आप करेंगे तो आपको left outer join you have studied, right outer join you have studied, and furthermore you full join you have studied. अब if you recall that with the left outer join हम क्या करते थे, we have to take all the records from the first table, इसके सारे रिकॉर्ड ले लेते थे जो लेफ्ट जॉइन वाले हैं, और फिर हम जो इनके साथ कॉमन होते थे वो तो ले लेते थे, जो नहीं कॉमन होते थे वो भी वैल्यूज हम लेते थे, रिकॉर्ड लेते थे, बट विद द हेल्प ऑफ द नल, जिधर वो नहीं है उधर हम नल लिख देते थे. सो व्हाट यू हैव टू से, यू सेलेक्ट स्टार एंड एफ स्टार. एस मींस द निक नेम ऑफ स्टूडेंट, एलियस टेबल जो है स्टूडेंट उसका एस मैंने दे दिया हुआ है, और जो फी स्लिप है इसका एफ दे दिया हुआ है. वी नीड ऑल द कॉलम्स फ्रॉम द फी स्लिप एंड दिस वन, एंड वी हैव सेड लेफ्ट आउटर जॉइन. हम स्टूडेंट टेबल को किसके साथ लेफ्ट आउटर जॉइन करेंगे, फी स्लिप के साथ. एंड ऑन वी हैव नॉट रिटन हियर वेयर, ये आपने याद रखना है. स्लिप नंबर इज इक्वल टू स्लिप नंबर, जो स्लिप आपस में कंपेयर कर रही है तो उसके लिए हम ये कहेंगे लेफ्ट आउटर जॉइन इसको करो. ठीक है बेटे. सिमिलरली यू कैन गो फॉर द राइट आउटर जॉइन. यू हैव टू राइट हियर फ्रॉम स्टूडेंट्स राइट आउटर जॉइन. अब राइट आउटर जॉइन में जो राइट वाली थी उसकी वैल्यू रखता था, और जो लेफ्ट वाली थी और उसमें से जो कॉमन है उनको रख के जो दूसरे के साथ नल लिख देता था. नाउ वी हैव आल्सो यूज सम सॉर्ट ऑफ कंडीशन कि इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, जो दोनों कॉमन कॉलम है जिनका. देन इन दिस मैनर यू कैन फाइंड द राइट आउटर जॉइन. फर्दरमोर वी हैव फुल जॉइन, जिसमें you have executed the left join, you have executed the right join, and then we learned about that the full join. उसमें क्या होता था, जो लेफ्ट जॉइन है और जो आपका राइट जॉइन है, जो दोनों की जो एक हाइब्रिड सी वैल्यूज आती थी वो हम अपने फुल जॉइन जो है ना वो वैल्यू रिफ्लेक्ट कर देता था. सो जस्ट यू हैव टू से दिस टेबल 1, दिस टेबल 2, which column you likely to reflect, or from this give the table name and these two tables, and we say on this one you have to give the value of the full join. तो आपका जो आप SQLite यूज कर रहे हैं, it will help you to execute left join and right join, और I'm not sure about कि वो full join को करता है, मेरे ख्याल में वो नहीं एग्जीक्यूट नहीं करता. इसको करके देखें. ठीक है बेटे. हेलो. ओके सर. हाँ, इसको रन करके देखें और देखें क्या फुल जॉइन को वो सपोर्ट करता है आपका जो आप डायरेक्ट यूज कर रहे हैं सीक्वल का. जी. तो इसमें अगर कोई नई चीज समझ आई तो पूछे मुझसे, इफ यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. आ गया समझ सर. बस इसको रन करके देखें, अपने उधर क्वेरीज करें तो उसमें ये है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मजीद डेवलप होगा कि व्हाट शुड बी द आउटपुट एंड व्हाई आर वी डूइंग दैट, हम इसको क्यों कर रहे हैं. सो ये फिर दो एग्जांपल्स मैंने और दी, इसी जो टेबल बनाए हुए थे इन्हीं टेबल की मैंने एग्जिस्ट से एग्जांपल दे दी कि एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट की. सो जस्ट टू रिमेंबर दैट कि ये जो दोनों आपके ऑपरेटर्स हैं, एक ऑपरेटर एग्जिस्ट और फिर उसको हमने नॉट के साथ यूज किया है. तो मैंने ये जो हम अभी जो टेबल बनाए थे इस पे मैंने इसको रन करके बताया कि सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी, ये स्टूडेंट का है, एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट एस टेबल वेयर एग्जिस्ट, ये वाला जो है फी में, ये कंडीशन लगा के ये इनर क्वेरी जो है दैट विल बी रन. फिर उसके बाद देखेगा जो आउटर क्वेरी है क्या वो जो यहाँ से रिजल्ट आए हैं क्या वो इसमें है या नहीं है. तो ये एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट के साथ यू कैन रन दिस क्वेरी. आपने इसको चला के देखना है दोनों क्वेरीज को, because we have prepared that tables, small tables हैं उनको you have to create that and run these queries and see the results please. तो इसको ट्राई आपने जरूर करना है. उसमें ये है कि जितने भी ऑपरेटर्स हमने पढ़े हैं सब क्वेरीज में इनका आपको यूज आ जाए. और फर्दर मोर हाउ टू राइट सब क्वेरीज, एंड इस सब क्वेरीज को हम लिखते ही आखिर क्यों है, वजह क्या है, उसकी रीजन क्या है, जस्ट वी हैव टू से. So within this lecture, we have discussed the subqueries. We have also discussed the join operations. And one more thing that we studied different operators, those we like to use in the subqueries. जिसमें हमने देखा है कि आप
इन यूज करके देखा है, इन नॉट इन यूज करके देखा, ऑल, एनी, सम हमने यूज करके देखा है, एक्सेप्ट यूज करके देखा है, दैट इज विद इन द सेट डिफरेंस जो आपने रिलेशनल अलजेब्रा किया था. Furthermore, we have studied in relational algebra join operations, natural join, equi-join, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन एंड द फुल जॉइन, वो हमने पढ़े थे. तो हमने सबको इम्प्लीमेंट करके देखा विद द हेल्प ऑफ द सीक्वल, कैसे उसमें इम्प्लीमेंट होते हैं. अगर इसके मतलब इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी तो मुझे आप जरूर बताएं, और इनको रन करके आपने जरूर देखना है. एनी क्वेश्चन बेटे? नो हेलो. सर। अच्छा, इनको बेटे रन करना है, रन करके फिर मुझे आपने बताना भी है. और जो आपका नेक्स्ट कमिंग सेशन है ना बेटे, ऑन वो जुमेरात को होगा, उसमें ना आपका एक क्विज है. वो इसी से है कि हमने ये सब क्यूरीज में क्या पढ़ा है और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं जो आज मैंने आपको डिस्कस किए हैं. इसको बेटे रिकॉल करना है आपने. उसमें आपका एक क्विज आएगा, फिर इसी में से आएगा. जी सर। नेक्स्ट सेशन हम ना व्यूज पढ़ेंगे, सीक्वल व्यूज हैं. और लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपका एक क्विज होगा, वो इसी में से होगा जो आज हमने पढ़ा है. तो इसको आपने रिकॉल जरूर करना है और घर जाके पढ़ना भी जरूर है. ओके बेटे, थैंक यू सो मच. अल्लाह आपको कामयाब करे. पढ़े अपना बेटे.